Hello, my dear students. So, welcome back to our discussion of hydrocarbons, and that is alkenes. So, alkenes, we had seen in alkenes geometrical isomerism, cis and trans isomerism. Now, we will move to methods for the preparation of alkenes. So we will see preparations of alkenes. And the first method, which is very simple, is what? From alkynes. From alkynes, alkynes are unsaturated hydrocarbon having triple bond between carbon atoms. तो ये alkynes from alkynes, very simple, but catalyst that is very important here. So what happens here, when partial hydrolysis, when partial hydrogenation यानी addition of hydrogen, when partial hydrogenation of alkynes is carried out under suitable condition, then alkenes can be obtained. सिंपल है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और क्या है, और वो कन्वर्शन कैसे होगा? हाइड्रोजन कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन और पार्शियल हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजन सप्लाई करना पड़ेगा. अगर एक्सेस में कर दिया तो ये डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड का फिर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्शन हो जाएगा. So this is what we say, that alkenes we are getting from alkynes under suitable condition. तो कौन सी suitable condition है, that we have to see. Okay? तो फंडा अपने को समझा, alkynes ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऐड करो, alkenes मिलेगा. अब देखना है कि ये कौन कौन से कैटलिस्ट और कंडीशन हमें अप्लाई करना है. तो हम जनरल फॉर्मूला लेते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर. तो दिस इज एल्काइन. इफ इट इज हाइड्रोजनेटेड by limited supply of oxygen. Now, अब यहाँ पर कैटलिस्ट को देखते हैं. If we use palladium and activated charcoal, poisoned by sulfur और क्विनोलिन. तो पैलेडियम एक्टिवेटेड चारकोल एंड पैलेडियम पॉइजन्ड बाय सल्फर और बाय क्विनोलिन. व्हाट वी गेट हियर इज cis. What we get here as the cis alkene. We get cis isomer of alkene. ये ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया और इसमें ये दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, एक एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा. तो ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर सी ट्रिपल बॉन्ड C R dash alkyne, limited supply of hydrogen, palladium charcoal poisoned by sulfur or quinoline will give
cis isomer. This is something what the condition plays a important role. अब cis isomer क्यों बोलेंगे? Because both the hydrogen on the same plane and two R and R dash on the other plane. Next इसी में फिर से वही सेम R C triple bond R dash hydrogen gas limited supply. Now here we will change the catalyst. We will use sodium and liquid ammonia. Sodium and liquid ammonia, then we get trans derivative. We get trans derivative. तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन एक कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे. Here is R and R dash. We get trans isomer. That means सिस एल्कीन कब मिलेगा हमको और ट्रांस अल्कीन कब मिलेगा? कैसे मिल रहा है? फ्रॉम एल्काइन, ट्रिपल बॉन्डेड से मिल रहा है. प्रोसेस क्या करनी है? हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. ट्रांस के लिए क्या लगेगा हमको? partially activated palladium or palladized charcoal. This is the condition जो हमने लिखा है, charcoal. तो क्या लिख रहे हैं? partially activated palladized charcoal. सही है? This is what we call as Lindlar's catalyst. तो ये इसका नाम याद रखना है अपने को, catalyst का. So when we use Lindlar catalyst, we get cis alkene. और trans alkene कब मिलेगा? When we have sodium and liquid ammonia as a catalyst NH3, then we get trans alkene. तो यहाँ देखिए आप वही चीज को याद रखने के लिए ये फॉर्मेट में लगाएंगे कि फ्रॉम अल्काइंस बाय हाइड्रोजनेशन वी गेट cis alkene by partially activated palladized charcoal, which is nothing but the Lindlar catalyst gives cis alkene, whereas trans alkene will be obtained by using sodium and liquid ammonia. हमें पता है अमोनिया गैस है, but we have to condense it and get converted into liquid ammonia. So liquid ammonia and sodium will give trans derivative. Let us take example. So here we take CH3, C triple bond, C CH3. To this we add H2 gas, limited supply. और कंडीशन बेटा हम क्या लगाते हैं? लिखते वक्त ऐसा लिखते हैं, पहले पार्शियली एक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, करेक्ट है? PDC will give cis derivative. अब ये cis derivative को हॉरिजॉन्टली हम लिखते हैं. हमने इसके पहले आपको वर्टिकली बताया था, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली cis derivative कैसे मिलेगा? तो ये CH3 हो गया, दिस कार्बन. अब ये कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन आ जाएगा एक, देन द डबल बॉन्ड हियर इज अगेन CH3 and H. So this is what the cis isomer. This compound is what we name as but2-ine. This is but2-ine and we get here cis
ब्यूट टू ईन, यानी आइन का ईन में कन्वर्शन, बट आइसोमर कौन सा मिल रहा है? सिस मिल रहा है हमको, करेक्ट है। अब इसी में आइसोमर कैटेलिस्ट बदल देते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस H2 गैस, limited supply as usual. Now the catalyst is sodium and liquid ammonia NH3. तो हमें क्या डेरिवेटिव मिलेगा? ट्रांस। अब ट्रांस डेरिवेटिव बनाना है तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड 2 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन, ट्रांस एक हाइड्रोजन एक प्लेन में, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे प्लेन में, वैसे ही CH3 in one plane and another CH3 in the other plane. So what we get here is trans but to ene, and this is as usual but to ine. तो देखिए by changing the catalyst, इसको हम क्या कैटलिस्ट का नाम दे सकते हैं, या नाम लिख सकते हैं लिंडलेयर्स कैटलिस्ट। लिंडलेयर्स कैटलिस्ट से सिस डेरिवेटिव मिलेगा और सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया से ट्रांस डेरिवेटिव मिलेगा। दिस इज व्हाट द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन यूजिंग alkyne and the required derivative. Hydrogenation of alkyne is the first method. Now we will take the second method. Second method is what we call it as 1,2 elimination reaction. 1,2 elimination reaction. पहले ये 1,2 elimination reaction को समझते हैं, elimination reaction, और फिर इसके एग्जाम्पल से एल्कीन्स कैसे बनेगा दैट वी विल सी। तो 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन इज व्हाट दैट एलिमिनेशन और रिमूवल टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन, दैट मीन्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। तो आपने एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल ले लिया, इसमें ये दो सब्स्टिट्यूशन है। These two substitution are on carbon number 1 and carbon number 2. Correct है? Carbon number 1 and carbon number 2. If they are heated under suitable condition, तो क्या होगा? यहां से ये AB निकल जाएगा, करेक्ट है? अंडर सुटेबल कंडीशन इफ दे आर हीटेड, यानी क्या होगा? सुटेबल कंडीशन कौन सी रहती है, हम पर्टिकुलर एग्जांपल में देखेंगे। सो क्या होगा यहाँ पर? 1,2 एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, एंड दैट 1,2 एलिमिनेशन विल गिव CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? A and AB एज ए साइड प्रोडक्ट आ जाएगा। तो एलिमिनेशन काय का हो रहा है? AB का एलिमिनेशन हो रहा है, तो -AB, और ये हमें क्या मिल गया? यहाँ पर अल्कीन मिल गया। सो 1,2 elimination means 2 atom or group get eliminated from adjacent carbon atom. They are eliminated from adjacent carbon atom under suitable condition, giving alkenes. This is what 1,2 elimination reaction. अब इसका example देखते हैं 1,2 elimination reaction. To understand this 1,2 elimination reaction, we will consider the first reaction of this elimination reaction. इसकी फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एंड दैट इज फ्रॉम एल्काइल हलाइड्स।
एल्काइल हलाइड्स हमें पता है, एल्काइल ग्रुप इज R, हलाइड इज X फ्रॉम एल्काइल हलाइड्स, करेक्ट है। तो इसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। तो लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, वी टेक हियर chloroethane, we take chloroethane saturated molecule। देखिए स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे इसमें तो बहुत इजीली समझ में आएगा। मैंने CH3 CH2Cl ऐसा नहीं लिखा, CH3 CH2Cl, इससे ये समझ में नहीं आएगा। जब हम स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे तो इजीली होगा। अब क्या होता है, वी हैव टेकन क्लोरोइथेन एन अल्काइल हलाइड, इट इज हीटेड with potassium hydroxide in alcoholic medium. This is something, a very important condition we have to remember. इसको हैशटैग लगाते हैं कि ये जो KOH है ये एल्कोहलिक KOH होना। अब ये एल्कोहलिक KOH यानी क्या होता है, that KOH is dissolved in ethanol. We call it as alcoholic KOH. Many times we will use this term alcoholic KOH। और हम दूसरा क्या बनाते हैं, aqueous KOH। aqueous KOH यानी KOH को वाटर में डिसॉल्व किया। तो यहाँ पर ये स्पेशल कंडीशन है कि जो KOH है उसे हम एल्कोहलिक मीडियम में लेंगे तब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मीनिंग होगा कि वो एक्वस मीडियम में है, और एक्वस मीडियम में एलिमिनेशन नहीं होता। एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जो हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि अल्कोहलिक KOH लेंगे और हीट करेंगे अल्काइल हलाइड से। अब क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, 1-2 एलिमिनेशन, यहाँ से HCl निकलेगा। HCl निकलने के बाद क्या बच गया देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन मिल गया, आ गया अल्कीन प्रिपरेशन। अब साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो साइड प्रोडक्ट तो क्या निकल रहा है, HCl, बट दिस एसिड इज इमीडिएटली रिएक्टेड विथ एल्कली। एसिड और अल्कली रिएक्ट होने से क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या बनेगा, HCl and KOH will react and form KCl plus H2O। So very easy method, 1-2 elimination में हमने फर्स्ट मेथड देखा, A मेथड देखा फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड क्लोरोइथेन लिया, heated with alcoholic KOH, it gives an alkene because of 1-2 elimination plus KCl and H2O. Let us take the next example. Next example, अब मैं यहाँ समझने के लिए CH3 CHBr CH3, I take this example 2-bromo propane। लेकिन ऐसा लिखने से हमें रिएक्शन समझेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो ये देखो CH3 CHBr CH3, what is name, 2-bromo-propane। So when we take 2-bromo-propane and it is heated with potassium hydroxide, what is important condition, alcoholic KOH, heated with alcoholic KOH। अब क्या होगा, 1-2 एलिमिनेशन। अब ये तो 2 है, ये पक्का हो गया सेकेंड कार्बन। आप 1-2-3 ऐसा ले लीजिए या 1-2-3 ऐसा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Br तो एलिमिनेट यहाँ से हो रहा है। लेट अस एलिमिनेट हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन। तो नंबरिंग हमने किया लेफ्ट टू राइट, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, 1-2 एलिमिनेशन। HBr बेटा कहाँ से रिमूव हो रहा, फ्रॉम कार्बन 1 and 2। तो डबल बॉन्ड कहाँ क्रिएट होगा, 1 और 2 में ही
क्रिएट होगा। तो ये CH2 बना CH2, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर अपर वैलेंसी का इससे सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन से, लोअर वैलेंसी का Br चला गया, यहाँ लोअर वैलेंसी का H चला गया। अब ये थर्ड कार्बन में कोई चेंज है क्या? जी नहीं, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं है एंड इट रिमेन्स CH3। What is the name of product? 1, 2, 3 carbon with double bond. It is named as propene. करेक्ट है। और फॉर्मूला अगर हमको रनिंग में लिखना है तो क्या लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है क्या प्रोपीन? करेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर से देखिए बहुत इजी होता है। अब साइड प्रोडक्ट आप बता दो, हमने ऊपर एग्जांपल में समझा दिया था। HBr फिर से एसिड है और इससे KOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? KBr plus H2O. So this is what the propene we get from 2-bromopropane by heating with alcoholic KOH, and once again it is undergoing elimination reaction, 1-2 elimination reaction. तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें और भी ज्यादा समझना है। Let us take 2-chlorobutane, CH3 CHCl CH2 CH3. This is 2-chlorobutane, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसको KOH के साथ में हीट करना है। कंडीशन क्या है? इंपॉर्टेंट, एल्कोहलिक KOH, और हीट करेंगे इसे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट के समझने के लिए हमको ये 2-chlorobutain को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में 2-chlorobutane यहाँ समझने के लिए याद रहे इसलिए लिख देता हूँ फिर से। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 2-chlorobutane। So this is what the 4 carbon, second is having Cl, ये first carbon CH3, CHCl, CH2 and CH3। हो गया बेटा, ये 2-chlorobutane दिख रहा है हमको। 2-chlorobutane कार्बन को नंबरिंग कर देते हैं हम, और नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 and 4 प्लस KOH। कंपाउंड क्या लिया हमने? 2-chlorobutane। अब इसमें देखेंगे कि सेकेंड कार्बन पे तो Cl है, ये तो रिमूव होगा ही। अब सेकेंड कार्बन के लेफ्ट में H है और राइट में भी H है, तो कौन सा रिमूव करने का? H कौन सा? फर्स्ट कार्बन वाला या थर्ड कार्बन का? अगर फर्स्ट कार्बन का रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड आएगा 1 और 2 के बीच में, और थर्ड कार्बन का H अगर रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड आएगा 2 और 3 के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर दो अलग प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, करेक्ट है, तो देखते हैं क्या अलग प्रोडक्ट मिलेंगे हमको, एंड वी विल राइट नाउ। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर कि इट इज बिटवीन C1 एंड C2 से रिमूवल है। एलिमिनेशन कहाँ से हो रहा है? C1 एंड C2 का एलिमिनेशन है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? CH2, यहाँ मैं ये बॉक्स बना देता हूँ अपने समझने के लिए, सही है। 1 और 2 से रिमूव होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सही है। अब और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि 2 और 3 से रिमूव करना है HCl, तो यहाँ पर वो भी मेंशन कर लेते हैं कि इट इज 2-3 कार्बन नंबर 2 और 3, तो 2 और 3 एलिमिनेशन
if undergoes carbon 2 and 3 undergoes elimination, then what product we get? तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा 2 and 3 के, यानी फर्स्ट वाला वैसा ही रहेगा CH3, सेकेंड क्या हो जाएगा CH, देन डबल बॉन्ड आ जाएगा 2 and 3 के बीच में क्योंकि यहां से एलिमिनेशन हो रहा है, एंड देन वी गेट CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH single bond CH3. Let us name this compound. This is but1ene and this is but2ene. Correct? but1ene and but2ene. हमें दो आइसोमर मिल गए. We get isomer but1ene and second isomer but2ene. कौन से आइसोमर है ये? What type of isomerism we see here? Here we see position isomerism कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपको एक पोजीशन आइसोमर मिला but1ene, और सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है तो नेक्स्ट आइसोमर मिला but2ene. करेक्ट है? सो दिस इज व्हाट द टू प्रोडक्ट वी गेट. यहां तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था हमको, है ना. 1 और 2 को रिमूव करेंगे तो भी प्रोपीन बनेगा, और 2 और 3 को रिमूव करेंगे तो भी प्रोपीन बनेगा. ओनली चेंज क्या रहेगा कि डबल बॉन्ड अब ये वाले टर्मिनल पे जाएगा, बट कंपाउंड विल रिमेन प्रोपीन, नो चेंज एज सच. सही है. बट व्हेन वी टेक 2-chlorobutane, सो कमिंग बैक, व्हेन वी टेक 2-chlorobutane and heated with alcoholic KOH, this 2-chlorobutane undergo elimination in two ways. If C1C2 undergoes elimination, we get but1ene, and C2C3 undergo elimination, we get but2ene. So but1ene and but2ene are the product we get. Now out of this two isomer, but1ene is found to be the minor product. Around 20% yield रहेगी इसकी, और but2ene as a major product इसकी yield around 80% हो जाएगी. तो ऐसा क्यों हो रहा है? Why we get two different yield of the same out of this same reaction? कंपाउंड तो 2-chlorobutane है. अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं -KCl एंड -H2O. चलो बैलेंस नहीं भी किया तो चलता, बट वी विल राइट इट हियर. सो व्हाट वी हैव रिटन, -KCl एंड -H2O. ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे हमको, साइड प्रोडक्ट आएंगे. वी फोकस ऑन but1ene and but2ene. Yield of but1ene is 20%, whereas that of but2ene is 80%. प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में फिर से आएंगे. 2-bromopropane, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है प्रोपीन, 100% वही यील्ड है. जहां पर आइसोमर पॉसिबल है उसमें एक आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनता है और दूसरा माइनर हो जाता है. इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल we call as Sedzep's rule. Sedzep's rule. As per this Sedzep's rule, but2ene is major while but1ene as the minor product. What the Sedzep rule says? More substituted alkene is found to be the major product, while less substituted as the minor product during elimination reaction. So during, ये Sedzep rule कहाँ लगता है? Elimination reaction में. During elimination reaction, more substituted alkene, जो प्रोडक्ट मिला, more substituted alkene is found to be
the major product during this reaction, and butene is more substituted. अब butene more substituted और but1ene is less substituted, ऐसे कैसे हम प्रूव करेंगे उसको? तो देखते हैं उसको प्रूव करने के लिए। अब ये लिखते हैं यहाँ पर but1ene और ये है but2ene, और एक जगह यहाँ हम लेते हैं सिंपल ब्यूटीन, है ना। तो ये R R H और H, ठीक है। तो but1ene एंड but2ene मोर सब्स्टिट्यूटेड। अगर यहाँ पर but1ene में क्या है, CH2, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। एक बार फिर से समझते हैं, है ना। CH3 CH2 डबल बॉन्ड but1ene, है ना। but1ene को लिखने के लिए ये CH2 double bond CH and the other group is CH2 CH3। ये एक H हो गया और ये पूरा ग्रुप हो गया CH2 CH3, जिसको हम लिख सकते हैं C2H5। देखिए नोमेनक्लेचर आएगा, ये दो कार्बन है 1 2 3 4, करेक्ट है। तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, but1ene। अब but1ene में स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, और but2ene का स्ट्रक्चर देखिए। but2ene में ये C डबल बॉन्ड C, दोनों पे एक एक H आ गया, ये H और एक H, और यहाँ दोनों पे CH3। नाउ फोकस ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके समझ में आएगा। क्या हो रहा है, यहाँ का ये डबल बॉन्डेड कार्बन का टर्मिनल हैविंग बोथ द हाइड्रोजन, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हाइड्रोकार्बन है ना, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन। अगर इसके जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप आएगा तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, करेक्ट है। लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन है। हाँ, ये कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन होने चाहिए थे। सो वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। सो हियर वी सी ओनली वन सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट है, ओनली वन सब्स्टिट्यूशन वी सी इन but1ene। अब but2ene में देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन की एक वैलेंसी H से सेटिस्फाइड है और दूसरी वैलेंसी CH3 से आ गई, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया फर्स्ट कार्बन पे। वैसा ही सेकेंड कार्बन पे एक वैलेंसी हाइड्रोजन पे है और दूसरी वैलेंसी फिर से कैसे सेटिस्फाई हो गई, CH3 से। सो दिस इज अ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, that is but2ene, and it is found to be the major product, whereas but1ene is found to be the minor product। मैंने यहाँ पर ये अल्कीन समझाने के लिए लिखा था कि ये अल्कीन है, 2 वैलेंसी है, ये हाइड्रोजन के जगह पे जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन आएंगे वो उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। तो ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फाउंड टू बी द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू विच रूल, Sedgwick's rule, करेक्ट है। नाउ व्हाट मोर वी कैन सी, दिस इज मोर सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू दिस, है ना। ये but2ene इज मोर सिमेट्रिकल इन नेचर एंड माइनर जो है ये अनसिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकली क्यों दिख रहा है अपने को, कि कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और दोनों टर्मिनल पे फिर से क्या सिमेट्री है, CH3 CH3। सो दिस इज मोर सिमेट्रिकल
जो जितना ज्यादा सिमेट्री होती है वो उतना स्टेबल होता है, तो दिस इज मोर स्टेबल, मोर सिमेट्रिकल, एंड दिस इज अनस्टेबल एंड अनसिमेट्रिकल, तो ये अनस्टेबल है, इसीलिए इसका यील्ड कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यील्ड भी ज्यादा है। दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेप रूल। नाउ formation of ease of formation of alkenes, ये क्या होगा? ease of formation of alkenes में more substituted alkene is more stable, तो CH2 C डबल बॉन्ड C ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है कि ये भी दोनों सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या हो सकता है? R2C डबल बॉन्ड CHR, ये दोनों R है और एक H लगा दिया R। अब इससे भी ग्रेटर क्या मिल सकता है अपने को? R2C डबल बॉन्ड CH2। सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं, सिर्फ एक ही कार्बन पे हुआ, दूसरे कार्बन पे नहीं है। अब इससे भी ज्यादा क्या हो सकता है? RCH डबल बॉन्ड CHR, sorry, so this is what the other substitution we see. So ease of formation of alkene is the same order and stability is also having the same order. This is highly substituted, more stable. This is little less substituted. यहाँ 4 substitution है, 2 इसमें 2 इसमें, यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है एक ही कार्बन पे, नेक्स्ट इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है अलग अलग कार्बन में, और ये वाला देखो इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल है ना, ये क्या है? लीस्ट स्टेबल। तो मैंने 2 चीजें बता दी यहां पर, एक क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, यही ट्रेंड रहेगा, और दूसरा स्टेबिलिटी के लिए भी यही ट्रेंड रहेगा अल्कीन के लिए। तो आज हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड पढ़ा बाय लिमिटेड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, और लिमिटेड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन में हमने 2 कंडीशन दिया। अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड प्रिपेयर क्या करना है? अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड, और उसमें हमने क्या देखा कि इफ वी टेक पार्शियली कैटेलाइज्ड, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, मतलब क्या है कि पैलेडियम लेंगे और डीएक्टिवेटेड चारकोल को एज ए कैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं लिंडलेयर्स कैटलिस्ट, अगर वो लेते हैं तो सिस आइसोमर मिलता है अल्कीन का, और सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो ट्रांस मिलता है। दूसरी मेथड हमने देखा 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, कि एडजेसेंट कार्बन से एलिमिनेशन अगर करते हैं तो हमें अल्कीन्स मिलता है, और उसके हमने 2 एग्जाम्पल देखे, और इसमें एक ये स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल हमें याद रखना है। कौन सा एग्जाम्पल है? 2-chlorobutane। 2-chlorobutane when subjected to elimination by heating with alcoholic KOH, condition important है, alcoholic KOH, then we get 2 product। if C1C2 elimination होगा तो but1ene मिलेगा, और C2C3 से एलिमिनेशन होगा तो but2ene मिलेगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि क्लोरीन सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन आ सकता है, थर्ड का भी हाइड्रोजन आ सकता है। वी गेट 2 प्रोडक्ट, but1ene and but2ene। but1ene is found to be a minor product 20%, whereas but2ene is a major product according to कौन सा रूल? सेट-ज़ेप रूल। What this rule says,
during elimination reaction, more substituted alkene is found to be the major product and butene is more substituted. ये हमने आपको समझा दिया यहाँ पर. Moreover, butene is symmetrical. It is hence stable. जिसमें भी सिमेट्री रहेगी वो स्टेबल होगा ना, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ, तो सिमेट्री. और ये क्या है, 1 ब्यूटीन इस तरह से हो गया, बैलेंस नहीं है इसमें, तो ये अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए ये अनस्टेबल है. और जो अनस्टेबल रहेगा उसकी यील्ड कम आती है, जो स्टेबल रहेगा सिमेट्रिकल रहेगा उसकी यील्ड ज्यादा आती है. तो ये साइंटिफिक नहीं है. साइंटिफिक क्या है, सेडजेफ रूल. ये एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन हमने किया है कि ब्यूटेन सिमेट्रिकल है इसीलिए स्टेबल है और इसीलिए उसकी यील्ड ज्यादा है. ब्यूटेन अनस्टेबल है, अनसिमेट्रिकल है, इसलिए उसकी यील्ड कम है. लेकिन साइंटिफिक क्या बोलेंगे, as per Sedgwick rule. We will continue in the next further methods for the preparation of alkenes. See you in the next lecture.